students in this online tutorial. Today I am going to teach you another lesson of mathematics of class 8. I have mentioned exponents and powers. Let us learn how to solve these problems of exponents and powers. And before that, we need to know what it means to you, what exponent means to you, what powers means to you. Okay, let's learn the concept first. Without wasting any more time, let's start. The name of the chapter is exponent. So exponent means same as powers. You can say the another name of power is exponents. Okay. We need to know basic things. That is exponential notation. What is exponential notation? What is exponential notation? Okay. एक्सपोनेंशियल नोटेशन किसको कहते हैं वो हम लोगों को जानना है। तो कुछ भी नहीं है ये, जब कोई नंबर मल्टीप्लाई के फॉर्म में एक ही नंबर की या डिफरेंस में नंबर ज़्यादा बार लिखे जाते हैं, बहुत सारे बार लिखे जाते हैं, तो उसी को छोटा करके लिखना एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाता है। ओके, एंड साइंटिस्ट यूज्ड, रिसर्चर यूज्ड इन साइंस फील्ड, इन स्टैटिक्स फील्ड, इट इज़ यूज्ड इन अ वैरायटी ऑफ वे, and it is a very needful thing for them to understand the things. Okay, because they have no time to write it 0 0 0 0 0 and like that. Okay, so let's learn the things. Suppose if 10 is multiplying 5 times by itself, I mean to say here 10 is in 5 times, 1 2 3 4 5, and all the 10 is multiplied by itself with the sign of multiplication. It means they are in the multiplicative form. Okay, they are multiplying each other. So after multiplication, what will happen? You will come to know that the answer will be, how many zeros are there? 1 2 3 4 5. So we can put it 5 0, because this is the basic thing, how to multiply. You also learned in junior classes. Yeah, 1 2 3 4 5. So there are 5 zeros and 1. It means this number is what? Ones, tens, okay, thousand, 10,000, lakh. It means it is 1 lakh. In Indian system value it is 1 lakh. Okay, but there is a little bit confusion. If there will be any mistake regarding putting zeros, if someone will put zeros like this, oh 6 zeros and then 7 zeros, then it will be boom. Okay, it will be very boom mistake. Okay, so to avoid those mistakes, what we will do? We will do just one thing. This is just to express you, or just to let you know. There are 5 zeros and it is 1 lakh. Okay, but so avoid such confusion, we need to do, and we need to write these numbers in exponential form, in power form. How? Let us learn. So we need to just one thing. What is the number? 10. Okay, and how many? It means in how many ways they are multiplying, in how many times they are multiplying. Just count it. 1 2 3 4 5. It means 5. So you need to not worry here. You need to just put it the same according to the rules to their power. Okay, it means the number is 10. We need to put here 5, because we have 5 tens, because 5 tens are multiplying with each other. Okay, कहने का मतलब है कि 1 2 3 4 5 5 to 10 आपस में मल्टीप्लाई के फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे इसको। तो कैसे लिखेंगे? एक्सपोनेंट के ऊपर रखेंगे यानी कि पावर के ऊपर रखेंगे, एक्सपोनेंट यानी कि पावर। ओके, अभी 10 की पावर 5। अभी देखिए ये नंबर क्लियरली पता चल रहा है कि नहीं कोई वैल्यू है जिसका वैल्यू क्या है, जिसका नाम क्या है, जो है क्या 10 टू द पावर 5। इसको पढ़ते हैं टू द पावर। ओके, 10 तो है ये,
लेकिन जब इसके ऊपर कुछ रहता है तो टू दी हम लोग हमेशा लगाते हैं, उसके बाद जो नंबर होता है वो पढ़ देते हैं। 10 टू दी पावर 5 या एक्सपोनेंट 5 ऐसे भी पढ़ते हैं, और नहीं तो ऐसे ही पढ़ सकते हैं 10 रेज़ टू दी पावर 10 रेज़ टू दी पावर, ओके, रेज़ टू दी पावर 5। ये पढ़ने का इसको तरीका है। सपोज अगर यहाँ 10 के तो पावर के जगह में 7 रहता तो हम लोग बोलते हैं कि 10, बिकॉज 10 इज द नंबर, ओके, 10 टू द पावर 7, ओके, ऐसा हम लोग पढ़ते हैं, रेज़ टू द पावर 7। दिस वे वी विल रीड। दिस इज द बेसिक थिंग्स यू नीड टू नो। इफ यू हैव नो आइडिया रिगार्डिंग दिस काइंड ऑफ concept, then only you will have a good concept in mathematics. Yeah. तो ऐसे हम लोग को पढ़ना है। तो अभी हम देखें कि 10 टू द पावर अगर 5 है, तो ये इजी वे में आपको पता चल गया, साइंटिस्ट को पता चल गया। अभी कोई कैलकुलेशन पार्ट होगा तो इसमें कोई मिस्टेक्स नहीं होंगी, क्योंकि ये इजी नंबर है 10 टू द पावर 5। लेकिन यहाँ 0 अगर रहता तो एक 0 छूट भी सकता है, बढ़ भी सकता है, मिस्टेक्स हो सकती हैं। इसीलिए उस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए ये तरीका अपनाया गया। ओके, फिजिक्स में इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ओके, अभी हम लोग तो सीखेंगे इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं। अब जस्ट इसका उल्टा सीखेंगे कि इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं, ओके, और यू कैन से मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में कैसे लिखते हैं। तो जस्ट इसका उल्टा करना, कुछ नहीं करना। अगर 10 का पावर 5 और इसको बोले कि नहीं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो, मल्टीप्लिकेटिव फॉर्म में लिखो, तो 10 है 5 है, कुछ नहीं करना, 10 नंबर है और इस 10 नंबर को क्या करना है, 10 को, चूंकि 5 इसका पावर इसलिए आपस में 5 बार मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिखना है। 10 into 10 into 10 into 10 and into 10, okay, how many times? 5 times, because in this question is saying 10 to the power 5, so we need to write 5 times, not more than that, not less than that. 1 2 3 4 5, it means this is the standard of multiplication form of exponent to the power 5। समझ में आया? जस्ट वाइस वर्सा करना है। आप 7 में 6 में किए होंगे, बहुत आसान सा चीज़ है, कोई भारी चीज़ नहीं है ये। खैर आइए अब आगे बढ़ते हैं। Before solving questions, okay, we need to know some laws of exponent. And what are they? Let us learn. You need to remember all these laws of exponent. Laws of exponents. ठीक है, exponents के कुछ नियम क्या है ये? Laws of exponents क्या कहते हैं? Laws of exponents कुछ कहते हैं। पहला लॉ है लॉज ऑफ एक्सपोनेंट में, ओके, आइए हम समझे आराम से। अगर a कोई नंबर है और इसका पावर m है, a टू द पावर m, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है a ही बेस का नंबर है इनटू m इक्वल्स टू, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा a टू द पावर m प्लस, यानी कि दोनों के पावर जुड़ जाएंगे। एक चीज़ आप जानिए और कि अगर ये 10 इसका पावर 5 है, ओके, ये जो 10 है जिसमें पावर है, यानी कि ये जो 10 है, ओके, इस 10 को हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है, और इस पे एक पावर है, यानी कि इसको एक्सपोनेंट जो है 5, इसको पावर कहते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लें, ऐसा ही, ये 15 हो गया, यहाँ -3, तो यहाँ हम बोलेंगे कि बेस नंबर क्या है, तो बेस नंबर हमारा 15 है और पावर क्या है, तो पावर -3 है। समझ में आया? ये बहुत सीधा सा कॉन्सेप्ट है, जूनियर क्लासेस में आपने सीखा होगा। आइए, तो यहाँ पे जो a है वो बेस है, और इस फॉर्मूला बोल रहा है कि यहाँ पे बेस सेम होने चाहिए, यानी कि अगर यहाँ a है तो यहाँ भी a होना चाहिए, और दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में होने चाहिए। अभी जब दोनों ऐसे होंगे तब एक फॉर्मूला सेटिस्फाई होगा, और वो फॉर्मूला कहता है कि a टू द पावर m प्लस n होंगे, यानी कि बेस
सेम रहेंगे, बेस को एज इट इज लिखना है, पावर्स को ऐड कर देने हैं, ओके, उनके एक्सपोनेंट्स को ऐड कर देने हैं। आज एग्जांपल से इसको हम लोग समझे, थोड़ा इस फॉर्मूले को समझे। जैसे कि 5 है, इसके पावर 2 है इनटू, ठीक है, 5 है, इसके पावर 3 है। तो क्वेश्चन देखो क्या बोला, यहाँ भी a होना चाहिए, यहाँ भी a होना चाहिए, यानी कि a मतलब कोई नंबर, कोई भी नेचुरल नंबर, इंटीजर्स, ओके, कुछ भी इंटीजर्स, ओके, a मींस एनी इंटीजर। तो a कोई इंटीजर नंबर है, यानी कि वो 5 हो, -5 हो, 2 हो, 3 हो, एनीथिंग, इट वुड बी एनीथिंग, ओके। एंड m एंड n नंबर्स है, ओके, नॉन जीरोस नंबर्स है, कभी-कभी जीरोस भी हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, तो यहाँ पे बेस सेम है दोनों का, दोनों मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि बेस को लिखना है, यानी कि a को लिखना है। तो यहाँ पे a की जगह में कौन है बेटा, 5 है। देखो a की जगह में कौन है, 5, ठीक है, m की जगह में 2 है, n की जगह में 3 है। फिर क्वेश्चन बोला a लिखना है, यानी कि बेस नंबर लिखना है, तो बेस नंबर है यहाँ पे 5 है, तो 5 लिखे। m प्लस n बोल रहा है, तो m को लिखना है, तो n कौन है यहाँ पे, m की जगह में 2 लिख दिए, प्लस है तो प्लस लिख दिए, n 3 है तो 3 लिख दिए। अब कुछ नहीं करना है, बस दोनों को जोड़ देना है। तो 5, अभी दोनों पावर को जोड़ेंगे क्योंकि दोनों प्लस साइन में है, तो 3 और 2 क्या होता है, 5, यानी कि 5 का पावर 5, आंसर हो गया। और अगर इसको और फर्दर सॉल्व करना है बेटा, तो कुछ नहीं करना है, जो अभी हम बताया कि 10 टू द पावर 5 होगा, तो 10 को 5 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखना है। तो उसी तरीके से 5 का पावर 5 है, इसका मतलब 5 को आपस में 5 बार लिखना है मल्टीप्लाई के फॉर्म में, कि 5 के पावर 5 होंगे, तो इनको लिखना है 5 बार मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में। आओ कैसे लिखे जाने हैं, कुछ नहीं करना, 5 इंटू, ओके, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 काउंट करके बस मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिख देना है, एंड नथिंग एल्स टू डू, ओके। 1 2 3 4 5 हो गया। अभी आप ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं कि इन सभी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 5 5 जा 25, 25 5 जा 125, एंड देन 5 जा एंड देन 5 जा, ओके। इट मींस 5 5 जा 25, इन दोनों को मल्टीप्लाई किए तो क्या आएगा, 25। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा, 25। 5 5 जा 25, एंड देन 5 है, इस 5 को रहने दें। नाउ 25 and 25 को मल्टीप्लाई करने से आता है 625, ओके, एंड नाउ 5 है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो कितना आएगा, 5 5 जा 25 का 5, कैरी में 2, 5 2 जा 10, एंड देन 2 12, now we have 1 in carry, so 5 6 are 30, and then 1 31. It means the product will be, the answer will be in full form, or you can say in a whole number, 3125. Okay, this is the answer. But we don't need to just solve it as usual. We need to just do it at just in this stage only. We don't need to just go further and further. Okay, बस यही तक करना है। तो ये पहला फॉर्मूला था। नाउ अब आ जाओ सेकंड फॉर्मूले से। ये थोड़ा नीचे लिखा so that it will be visible to you. सेकंड फॉर्मूला कहता है कि a to the power m है और ये डिवाइड हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे डिवाइड की साइन है, यहाँ मल्टीप्लाई था, यहाँ डिवाइड, a to the power n से ही, तो क्या होगा, a to the power m minus n होगा, ओके, यानी कि पावर आपस में माइनस हो जाएगा। इन जो फॉर्मूले से लॉस है उनको आपको याद रखना है। और उसको भी समझे एग्जांपल से। 7 है, इसका पावर 8 है, डिवाइड का साइन है, 7 है, इसका पावर 5 है, तो क्या होगा, सॉल्व करना। अगर ये क्वेश्चन है तो सॉल्व करना, ओके, यू नीड टू सॉल्व, व्हाट विल बी योर आंसर। सो वी नीड टू जस्ट गो थ्रू द फॉर्मूलाज, लेट्स सॉल्व इट। The question is saying if the base is same and there will be division sign and they are in exponents, so the formula is e to the power m minus n, okay, it means 7 and 7 दोनों बेस सेम है। अगर यहाँ पे 6 रहता तो नहीं होता, क्योंकि वहाँ पे a बोला, यानी कि बेस सेम होगा। अगर सपोज दैट लेट अस कंसीडर अगर यहाँ पे 6 होता तो कभी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि बेस सेम नहीं है, ये 7 है, ये 6 है, अलग अलग हो गए ना, इसलिए नहीं होगा।
यहाँ क्या बोला है, सेम होने चाहिए, या तो ये 6 हो जाना चाहिए या तो ये 7। तो चलिए इसको 7 बना लिया जाए, ये 7 है। अब ये हो जाएगा, तो क्या था फिर 7 टू द पावर m माइनस n। तो m की जगह में 8 है, माइनस और याद रहे इसको उसके ऊपर लिखना है, पावर्स में लिखना है, ठीक है ना, नीचे नहीं लिखने। 8 माइनस 5 ना, फर्दर इसको आप सॉल्व करिएगा तो क्या आएगा, 7 टू द पावर 8 में 5 दिया तो 3। ओके, आंसर। बस तो ऐसे इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं। आपको आइए थर्ड फॉर्मूले की ओर बढ़े। थर्ड फॉर्मूला कहता है आपको तीसरा फॉर्मूला है a टू द पावर p। ओके, एक कोई नंबर है, बेस है, इसमें पावर p है और ये पूरे का पावर होल ब्रैकेट का पावर q है, ऐसा कुछ है। तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये जो a यानी कि बेस से रहेगा, पावर्स दोनों अंदर और बाहर के पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, p इंटू q हो जाएंगे। ओके, p इंटू q। साथ साथ आपको एक बात और बता दो कि अगर आप यहाँ p और q की जगह बुक्स में या बहुत सारे बुक्स में कॉपीज में अलग भी देख सकते हैं, m n, वो अपने कन्वीनियंस के अनुसार लोग लेते हैं, ठीक है, x y भी हो सकता है। कहने का मतलब है कि p q m n a y z मतलब एक वेरिएबल नंबर जो किसी नंबर्स को, पर्टिकुलर नंबर्स को डिनोट कर रहा है ना, घबराने की बात नहीं है, बस मतलब समझना है फॉर्मूला का। ओके, तो इसमें भी एक एग्जांपल है। सपोज 2 है, इसका पावर 2 है यानी ये होल का पावर 5 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये क्वेश्चन देगा आपको, सॉल्व दिस वन। सो यू नीड टू जस्ट गो थ्रू द फॉर्मूला। ओके, फॉलो द फॉर्मूला एंड सॉल्व द क्वेश्चंस। सो 2 क्या बोल रहा था, पावर मल्टीप्लाई होगा, तो 2 इंटू 5, सॉरी 2 इंटू 5। नाउ in next step you will need to just solve it। 2 मल्टीप्लाई हो रहा है तो मल्टीप्लाई कर दीजिए, पावर 2 5 are 10, so 2 5 are 10, so 2 की पावर 10 आंसर। फर्दर आपको कैसे सॉल्व करना है, 2 को 10 टाइम्स लिखना है एज यूजुअल। एक और ले लेते हैं 13 टू द पावर 3 टू द पावर -7। ओके, आज इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो बस क्या बोल रहा है, पावर्स इनटू होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। ये करें 13, just multiply the powers 3 into -7। okay, this way, because of minus sign we can also put here bracket for our convenience। okay, now we need to multiply the powers, so in power we have two numbers and they are 3 and -7। so after multiplication we have 7 3s are, or you can say 3 7s are 21, just put it here 21। okay, but also we need to take care of the sign, and the sign says there is a positive sign and then negative sign, so positive and negative makes negative। okay, plus minus means minus, so 13 raised to the power -21 is our answer। You have gone through the first part of this video so that your concept is now clear। Now move to some few concepts and then thereafter we will solve the questions as per the exercise। okay, so let us learn few formulas more। okay, now we have one formula and the formula says a by b, okay, multiplied with c by d and to the power n, it means to the power n, n is the power which is same for a by b and also for c by d। then what we need to do, what formula says, formula says you can split them separately by putting the formula as usual। it
इट मीन्स आप इसको अलग कर सकते हैं a by b into n, now multiplied and multiplied c by d फॉर्मूला n। ओके, आप इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, ठीक है, और इसको सॉल्व कर सकते हैं। फर्दर याद रखो बेटा, अगर आप किसी नंबर्स को देखते तो घबराना नहीं है, a by b ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है, 1 मिनट, a by b ऐसा लिखा हुआ है, इसका पावर अगर समथिंग कुछ है, मान के चलो 2 है, ठीक है, तो इसी को चूंकि बुक्स में शॉर्ट में लिखते हैं या क्वेश्चंस पेपर में, है ना, तो उसको हम लोग a अपॉन b, यानी कि ये बाई जो है, ये बाई, ये जो बाई था वो ऐसा बन गया, मीनिंग सेम है, बस वो उसका प्रेजेंटेशन का तरीका बदल गया, लेकिन वो मीनिंग सेम है, तो आप गलत मत समझना, ठीक है, या घबरा मत जाना। a by b टू द पावर 2 इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से अगर चले तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a अपॉन b, और यू कैन से बाय b टू द पावर n multiplied by c upon d to the power n, okay, this way. So the main summary of the whole formula is a upon b to the power n into c upon d to the power n. It means we need to just split them differently or separately. Now let's understand, समझे एग्जाम्पल्स। आपको पता होना चाहिए कि अगर फ्रैक्शन में नंबर है तो ऊपर वाले पार्ट को न्यूमरेटर कहते हैं और नीचे को डिनोमिनेटर, यानी कि ये a न्यूमरेटर का पार्ट है, b डिनोमिनेटर, उसी तरीके से c न्यूमरेटर है, d डिनोमिनेटर। ओके, आओ समझिए, एक लेते हैं एग्जांपल, 2 upon 3 multiplied with, okay, 4 upon 5 and the power is 2, so we need to do one thing, we need to solve it, okay। और तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे, देन इक्वल्स टू स्प्लिट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या बनना है, a by b अलग कर दो, यानी कि हम लोग लिखेंगे इसको 2 by 3, जब इसको अलग कर दें, यानी कि पावर क्या था इसका, n क्या था, n के जगह में 2 है ना बेटा, कंपेयर करो, फॉर्मूले को कंपेयर करो, सो 2 लिख दिए, नाउ मल्टीप्लाई की साइन लिख दिए, सो नाउ वी हैव 4 upon 5 एंड देन फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला से n, यानी कि पावर में, ओके, पावर 2 है, लिख दिए, नाउ सॉल्व, अब इसको सॉल्व करना है, आप सॉल्व करें, इसको तोड़े, तो कैसे तोड़ेंगे, तो कुछ नहीं करना है ना, अभी चूंकि देखो 2 by 3 और 4 by 5 ये सेम नंबर नहीं है, पहला फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, याद होगा अगर आपको तो, कि a to the power m into a to the power n equals to a to the power m plus n, ओके, अगर a to the power m हो और मल्टीप्लाई हो रहा हो a to the power n से, तो फॉर्मूला बनता है a to the power m plus n, लेकिन यहाँ पे बेस नंबर सेम नहीं है, यहाँ 2 by 3 है पर यहाँ 2 by 3 नहीं है, तो हम लोग इसको ऐड नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे अलग अलग सेपरेटली, 2 by power 3 है, 2 by power 3 को पावर 2 है, इसको आइए सॉल्व करें, 2 बार यानी कि 2 बार लिखना है, सो 2 by 3 into 2 by 3 लिख लिया ऐसे, मल्टीप्लाई का ये साइन था, अभी सपोज दैट थोड़े समय के लिए इसको ब्रैकेट में लिखा है, मल्टीप्लाई का साइन था मेन, मल्टीप्लाई लिख लिए, अब 4 by 5 है, तो 4 by 5 into 4 by 5, क्योंकि 2 बार, क्योंकि फॉर्मूला 2 बोलता है, एक्सपोनेंट्स में पढ़ चुके हैं हम कि कैसे इसको लिखते हैं, एक्सपोनेंशियल को मल्टीप्लिकेशन में, यू कैन से स्टैंडर्ड में, ओके, अब कुछ नहीं हो रहा है, ये सिंपल मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये तो 2 क्लास का बच्चा भी कर देगा मल्टीप्लाई, है कि नहीं, आओ करें, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से ऐसे ही मल्टीप्लाई होता है ना, अगर कोई कटने वाला नंबर होता है ना, तो हम लोग काट देते, तो ऐसा कुछ नंबर नहीं, आओ उसको सॉल्व करें, 2 into 2 that is 4, now 3 into 3 that is 6, okay, now bracket खोलिए, now we have multiplication sign, ये वाला तो ये तो रहेगा ही, क्योंकि ये दोनों पार्ट आपस में मल्टीप्लाई होगा, we have 4 4 16 and 5 5 25, सिंपली मल्टीप्लिकेशन कर लिया हमने, अभी देखना है अगर कुछ नंबर कट जाएंगे तो यहाँ पे काट सकते हैं, ओके, जैसे कि ये करते हैं, ठीक है, 2 3 6, 2 8 16 कट गए, अभी कोई कट रहे हैं, मुझे नहीं पता, तो अभी ये बचे
तो इनको मल्टीप्लाई करिए 4 इंटू 8 3 इंटू 25। फर्दर इसको आप सॉल्व करिएगा मोरओवर then you will get 8 4s that is 32. Now 25 3s that is 75. After multiplication you will have the answer I guess. Okay, so this will be your answer. क्या आंसर होगा? Now move करते हैं आगे next point. Next is if a by b is any number any base, okay, and we have the formula as -1 that is minus m. So the resultant will be, the formula says it will be reciprocal यानी कि b by a, okay, and a by b कोई बेस नंबर है और उसका नेगेटिव में साइन है, ठीक है, उसका पावर जो है नेगेटिव में है -n एक पावर जो कि नेगेटिव में है, तो क्या करना है उसका डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर में चेंज कर देना है, तो पावर जो है पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है, बस यही है और कुछ भी नहीं, ओके। आप समझे इसको, जैसे 5/3 बेस है, इसका पावर -2 है, इसको सॉल्व करना है, ये माइनस में है तो इसको पॉजिटिव बनाना है, तो पॉजिटिव ये तब बनेगा जब ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में आ जाए, ये डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चला जाए, यानी कि 5 3 की जगह में आ जाए और 3 5 की जगह में चला जाए, यानी कि रेसिप्रोकल हो जाए, उल्टा हो जाए। तो हमको कुछ नहीं, उल्टा करके बस लिख देना 3/5, क्योंकि उल्टा हो गया इसलिए इसका पावर 2 हो गया, बस आसान सा है ना। और एग्जांपल लेना है, फिर फर्दर इसको आप सॉल्व कर दीजिए जैसा हम लोग सॉल्व कर रहे थे, है ना। फर्दर और एग्जांपल ले सकते हैं हम, -8 2 नहीं, चलो 3 ले लेते, 3 पावर है इसका -7, तो क्या होगा ये, बस न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की जगह में डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, ओके, रिवर्स द थिंग्स एंड यू विल हैव an answer. Then we have 3 - 8 because we reciprocal the numbers digits, so -7 will change to +7, okay, अब ये +7 में बदल गया आंसर, बस फिर फर्दर इसको सॉल्व कर दीजिए, बहुत आसान है। लास्ट फॉर्मूला है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट वन, इफ a by b is any number and its formula, its exponent is 0, then must remember the formula says it will be 1, ठीक है, ये 1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1, ओके। कहने का मतलब है कि कोई भी बेस है, अगर किसी भी बेस का पावर 0 होता है बेटा, तो जो रिजल्टेंट मिलता है हमको वो 1 के रूप में मिलता है, वो यूनिटी के रूप में मिलता है, ठीक है, यूनिटी भी कहते हैं उनको। आओ समझे एग्जाम्पल से मैं क्लियर करते जा रहा हूँ हर एक फॉर्मूला को, ताकि जब आप क्वेश्चंस बनाओगे एक्सपोनेंट्स के तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम्स ना हो, इसलिए ध्यान से इस वीडियोस को देखो, अगर आपने नहीं देखा है तो पॉज करो, रीप्ले करो और अच्छे से समझो, ओके। नाउ 3/5 टू द पावर 0 है, तो कुछ नहीं करना है, फॉर्मूला कहता है कि बेस होगा, बेस कोई भी नंबर हो सकता है, 3/5 का एक नंबर, इसका पावर 0 है यानी कि 1, पावर केवल लिखना है, अगर पावर 0 है तो इसको सिंपली 1 लिख लीजिए, आंख बंद करके निश्चिंत होके, ठीक है ना। फिर अगर मान के चलो -5/2 है, ओके, -5/2 और इसका पावर 0 है, देन ये विल आल्सो, ये भी 1 हो जाएगा, है ना, समझ गए। कुछ भी नंबर होगा पावर 0 है तो वो 1 हो जाएगा, -125/721, इतना बड़ा नंबर था, लेकिन अगर इसका पावर 0 है तो इसका मतलब ये बड़ा नंबर 1 है ना, ये 1 के इक्विवेलेंट है, समझ में आया, ऐसे बनाना है बस, ओके।